This is writing 2. This is writing task 2, and the instructions are you should spend about 40 minutes on this task, and this is the topic. Give reasons for your answer and include any relevant examples from your own knowledge and experience. And this is important to read. You should write at least 250 words for this essay. Let's read this topic. Some people believe that nowadays we have too many choices. Some people believe that nowadays we have too many choices. To what extent do you agree or disagree with this statement? See, जब हमें ये राइटिंग टास्क 2 अपने को मिल जाता है तो उसको प्लीज़ 3-4 टाइम्स you should read to understand the proper meaning. First you have to find the topic of the essay, and after this you have to find what they are asking you. To what extent do you agree or disagree? And some people believe that nowadays we have too many choices. Now that some people believe they are believing that we have too many choices in the present situation, in the present scenario. Okay, let's discuss how to paraphrase this statement as well as how to do your opinion about this agree or disagree statement. Let's start it. Okay, some people believe that. The first part of the question was some people believe that. The statement was, let's see it again, let's check it again. Some people believe that. Till here we will be doing the paraphrasing first. Okay, let's do it. Okay, for some, what we may use the another word like many, several or myriad. Many, several or myriad, we can use the another words for some. For people, there are so many words we can use for people, like human beings, humans, individuals, persons and mankind. We can use instead of people, human beings, humans, individuals. Let's write it here. It's not visible actually from individuals, persons and mankind. आपको इनमें से कोई एक वर्ड यूज करना, नॉट एवरी वर्ड. दीज आर द सिनोनिम्स वी कैन यूज फॉर पैराफ्रेजिंग द क्वेश्चन स्टेटमेंट राइट इन राइटिंग टास्क 2. ओके, फॉर बिलीव, ऑफ कोर्स इट हैज ऑल्सो सो मेनी वर्ड्स. फॉर बिलीव वी कैन यूज थिंक. हैव कॉन्फिडेंस, हैव कॉन्फिडेंस. ओके, okay, for believe we have think, have confidence in or that. Convinced, consider, be of the opinion that, have an idea that or claim. We can use इनमें से कोई एक वर्ड आप यूज कर सकते हो. लाइक द क्वेश्चन वाज सम पीपल बिलीव दैट. सम पीपल बिलीव दैट, इसको ऐसे बना के देखो. सम पीपल थिंक that some people have confidence in that, और हम इसको ऐसे बना सकते हैं some people are convinced, some people consider it, consider that, some people are of the opinion that, some people have an idea that. Question was that we have too many choices. Some people claim that, some people claim that we have too many choices. Like we can do paraphrasing like this, but this is an like एग्जाम में हम इतना ज़्यादा नहीं लिखेंगे, बट हाँ 2-3 सिनोनिम्स वी कैन फाइंड एंड व्हाट दे आर फिटिंग अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, वो हमें लिखना है उसमें. ऐसा नहीं है कि हम इतने सारे जैसे मैंने आपको दिए हैं तो बट आप सारे के सारे कुछ भी डाल दोगे. वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आपको उसमें फिट करने हैं. लाइक मैं बोलूँ मैनकाइंड, अब मैनकाइंड के साथ अगर हम कुछ फिट करेंगे, मैनकाइंड हैव एन आइडिया, चलो चलेगा. मैनकाइंड क्लेम, ये भी चलेगा. मैनकाइंड सब कुछ चल सकता है, बट हाँ अब मैं यही बात बोलना चाह रही थी कि आपको जो भी लिखना है सेंटेंस के अकॉर्डिंगली, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली उसमें फिट करना है. ओके, अगर आपको ये सब सम पीपल बिलीव दैट, अगर ये सब भी नहीं करना है तो एक सिंपल और एक और मेथड है, इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर दो. फर्स्ट की जो लाइन्स हैं सम पीपल बिलीव दैट को हम कैसे करेंगे, सम पीपल बिलीव दैट को हम सीधा डायरेक्टली इनटू पैसिव वॉइस. लाइक वी कैन से इट इज बिलीव दैट, आगे क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है उसको लिख सकते हो. इट इज ऑफन आर्ग्यूड दैट, इट इज ऑफन आर्ग्यूड दैट. ओके ओके, फाइनली अब हमारा जो लास्ट की जो स्टेटमेंट बची है, टू व्हाट एक्सटेंट, लेट्स डिस्कस इट हाउ वी विल बी गोइंग अबाउट दिस. ओके,
Now we have left with nowadays we have too many choices. To what extent we will be discussing at the last only. At the last, okay, let's discuss. Some people believe that nowadays we have too many choices. यहाँ तक हमने कर चुके हैं, अभी हम ले लेते हैं nowadays को. nowadays को हमें कैसे क्या लिखना है? For nowadays, it is important to learn for nowadays. In speaking also, you should use this word only. In this day and age. In this day and age is a good word to use in your speaking as well as in writing also. For next word is we have too many choices. For too many choices, like here too many choices, we have for too many choices we can write the word excessive, overwhelming or be overwhelmed by और बी फ्लडेड विथ. हम इनमें से कोई एक वर्ड को यूज कर सकते हैं फॉर टू मैनी के लिए. फॉर चॉइसेस, लेट्स सी चॉइसेस के लिए हमें क्या यूज करना है वर्ड. ऑप्शंस वी कैन यूज, ऑल्टरनेटिव्स, टू डिसाइड द ऑप्शंस. ऑफ कोर्स हम पूरे पैराग्राफ में हम चॉइसेस तो नहीं लिख सकते हैं. वी शुड कन्वर्ट दिस वर्ड सिनोनिम इनटू द पैराग्राफ्स, इनटू द एसे ओनली. और कभी कभी हम चॉइसेस भी लिख सकते हैं. ऐसा नहीं है कि दिस इज नॉट नेसेसरी कि यू हैव टू पैराफ्रेज और यूज सिनोनिम्स फॉर द वर्ड एवरी टाइम. Of course, I think two or three times we can use this word because we have options like 3 here. Of course, इससे भी अलग से भी कुछ और ऑप्शन हो सकती है. मेरे नॉलेज में मेरे को यही पता है तो मैं आपको यही बता रही हूँ, ठीक है. बट आप और भी यूज़ कर सकते हो. ऑफ कोर्स ये वाला वर्ड भी आएगा आपके ऐसे में लिखने में. अब लास्ट का पोर्शन जो अपना बचा है इस क्वेश्चन के लिए, टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री विद दिस स्टेटमेंट. यस, अब इस क्वेश्चन के लिए आपको वहाँ पे अच्छे से बताना है कि आप एग्री हो या डिसएग्री हो, उनमें से एक. अगर एग्री हो तो भी 2 पॉइंट्स लिखने हैं, आपके पास रेडी होने चाहिए. 1 in paragraph 1, 2 in paragraph 2, बट 1 पैराग्राफ शुड बी 2. उसके साथ उसकी रीजनिंग 3-4 होनी चाहिए बताने के लिए. और ऐसे ही डिसएग्री हो तो 2 मेन पॉइंट्स होने चाहिए और उसके आगे सब पॉइंट्स होने चाहिए आपके पास. तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे? तो उसके लिए वी कैन राइट आई कंप्लीटली एग्री. आई कंप्लीटली एग्री. अगर आप एग्री हो, अगर आप डिसएग्री हो तो आई कंप्लीटली डिसएग्री. तो हम ये एग्री वाला ऑप्शन यहाँ नहीं लिखेंगे. ऐसा नहीं है कि आप दोनों ही लिखोगे जैसे मैंने यहाँ लिखा है, ऐसे नहीं. वो तो मैंने समझाने के लिए लिखा है, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन कि आई कंप्लीटली एग्री विद दैट स्टेटमेंट और आई कंप्लीटली डिसएग्री विद दिस स्टेटमेंट. ओके, नाउ लेट्स लुक एट द फुल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. Okay, question was, some people believe that nowadays we have too many choices. So we will be writing the final answer. In this day and age, many people feel overwhelmed by the many choices available to them. Of course, मैंने nowadays को पहले लिख दिया है and many people को, some people को मैंने convert कर दिया, some को many में डाल दिया और people को ऐसे ही छोड़ दिया. और फील, बिलीव के लिए आप फील भी यूज कर सकते हो. मैंने वहाँ फील नहीं दिया ऑप्शन. ओवरवेल्म्ड का मतलब है टू मेनी चॉइसेस बाय द मेनी चॉइसेस. ओवरवेल्म्ड बाय द मेनी चॉइसेस अवेलेबल टू देम. ये हमें जो मिल रखी है. टू देम हेयर मीन्स वी हैव, जैसे यहाँ लिखा है क्वेश्चन में, वी हैव टू मेनी चॉइसेस. ओके, उसके बाद सेकंड जो पार्ट था क्वेश्चन का, टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री विद दिस स्टेटमेंट. इसके लिए मैंने ये लिखा है आई कंप्लीटली एग्री विद दिस स्टेटमेंट. ओके, इसके लिए मैंने ये लाइन लिख दी है आई कंप्लीटली एग्री विद दिस स्टेटमेंट. लेकिन उसके बाद फिर आप थीसिस स्टेटमेंट भी लिखोगे लाइक दिस एसे डिस्कसेस. और हम कई बार लिखते हैं दिस एसे विल डिस्कस. आप ये भी लिख सकते हो. You can write this also, this essay will discuss, or highlight. या तो डिस्कस लिखोगे या हाईलाइट लिखोगे, और या ऐसे भी लिख सकते हो दिस ऐसे डिस्कसेस अबाउट द एंडलेस चॉइसेस लाइक इंटरनेट. अब यहाँ चॉइसेस की जगह पे इनफैक्ट आपको ऑप्शंस लिखनी चाहिए. ऑप्शंस इन लाइफ लाइक इंटरनेट एंड फूड आइटम्स. मैंने उससे पहले आपको ग्लोबलाइजेशन के बारे में बता रही थी, बट मैंने कहा चलो ठीक है, फूड आइटम्स इज अ कॉमन थिंग, वी कैन इसके बारे में हम बहुत कुछ लिख सकते हैं. इंटरनेट एंड फूड आइटम्स इन द अपकमिंग पैराग्राफ्स विद
वेल डिफाइंड कंक्लूजन, विद वेल डिफाइंड कंक्लूजन। ये अपना जो है इंट्रोडक्शन हुआ, इन दिस से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक अपना कंक्लूजन तक ये फुल स्टॉप है, ये दिस इज इंट्रोडक्शन। ओके, आई होप आपको ये पैराग्राफ 1 इंट्रोडक्शन पैराग्राफ को कैसे लिखते हैं वो आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।